بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس۔ کھیلوں میں اہم خبروں کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے پہلے 3 T20 میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو گئی ہے۔ اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبدالقدیر۔ خبرنامے میں آپ کو آگاہ کریں گے موسم کی تازہ 3 صورتحال کے علاوہ بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ فی الوقت آپ کو واپس لیے چلیں گے مینڈس کی جانب۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ حکومت میں شامل جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صدارت کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں قومی اسمبلی سیشن سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ پاکستان اور چین کے درمیان درہ خنجراب کے ذریعے تجارتی اور سفری سہولتیں کل سے دوبارہ بحال ہوں گی۔ راہداری کھولنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سی پیک منصوبوں اور دو طرفہ تجارت میں تیزی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خنجراب پاس دوبارہ کھلنے پر اظہار مسرت۔ سی پیک کی رفتار بڑھانے کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ دور ہو گئی۔ فارن فنڈڈ شخص نے سی پیک کو متنازع بنانے کا جرم کیا۔ اس شخص نے دونوں ممالک کی عظیم دوستی کی پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ تجارتی راہداری کھلنے سے دونوں ممالک میں تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف سی پیک کے معمار ہیں۔ سی پیک کے خلاف فورن فنڈڈ فتنے کی سازش ناکام بنا دی۔ خنجراب پاس کھلنے سے عوام کی مشکلات ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی چین اور پاکستان کی قیادت کو مبارکباد۔ ڈبہ پیر، ڈبو، عمران کا ڈاکو اور دانشور منتظر ہیں کہ کب عمران نااہل ہو اور وہ پارٹی قیادت سنبھالیں۔ زمان پارک کا رنگ باز اور ملتان کا ڈبہ پیر سپریم کورٹ کی اکثریتی ججوں کی رائے کی توہین کر رہے ہیں۔ متداریوں کے ہاتھ ڈگڈگیاں ہیں جو وہ زور زور سے بجا رہے ہیں۔ شیطانی ٹولہ ہمیشہ آئین، انصاف اور عوام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ عوام کو مفت آٹا اور مفت بجلی ملے تو عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے۔ 4 سال عوام کا آٹا، چینی، روٹی لوٹنے والا اب مفت آٹا سکیم کو متنازع بنا رہا ہے۔ سیاسی یتیم تمام سازشیں ناکام ہونے کے بعد عوام کے آٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میڈیا تحقیق کے بغیر جھوٹی اور عوام دشمن خبریں چلانے سے گریز کرے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ فورن ایجنٹ جھوٹا اور گھڑی چور پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو کاغذات میں چھپانے کی وجہ سے نااہل ہوگا۔ فورن فنڈڈ جماعت کی پارٹی رجسٹریشن منسوخ ہونی چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی۔ مراکز میں خواتین، بزرگ اور خصوصی افراد کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز۔ لوگوں کی بڑی تعداد تاریخی پیکج سے مستفید۔ حکومتی اقدامات پر اظہار تشکر۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر وفاقی حکومت کا 5 ارب روپے کا ریلیف پیکج۔ آٹا، گھی، چاول، دالیں، چینی سمیت 19 ضروری اشیاء پر سبسڈی۔ عوام کو دشواری اور مہنگائی سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح۔ شہداء ہمارا فخر۔ سپاہی اعجاز احمد ایک بہادر اور نڈر سپاہی۔ سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 6 ستمبر 2009 کو دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مادر وطن پر قربان ہونے والوں کو قوم کا سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا منصوبہ کشمیری عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ حریت قیادت کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے ظالمانہ اقدام رکوانے کا مطالبہ۔ مودی کے بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ بھارتی عدالت نے گجرات فسادات میں اجتماعی زیادتی اور مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث تمام ملزمان بری کر دیے۔ زعفرانی دہشت گرد مسلمانوں کو زندہ جلانے اور خواتین کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے تھے۔ ماہ سیام میں بھی اسرائیلی فورسز کی ریاستی دہشت گردی کم نہ ہوئی۔ صہیونی فورسز کی مغربی کنارے کے علاقے بیت عمر میں گاڑی پر فائرنگ۔ 24 سالہ فلسطینی شہید۔
काबिज इसराइली फोर्सेज रवां साल अब तक 92 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में कल और मंगल को तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। मूसलाधार बारिश के बाइस मकामी नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। अमेरिका में मियामी टेनिस ओपन, जमहूरिया चेक की पेट्रा ने पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में काज़ाकिस्तान की अलीना को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रां प्री, दिफाई चैंपियन नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन ने जीत ली। बर्तानिया के लुइस हैमिल्टन की दूसरी और स्पेन के फर्नांडो अलोंसो की तीसरी पोजीशन। और जनूबी अफ्रीका के ब्रेड बाइंडर ने अर्जेंटीना ग्रां प्री मोटर जीपी जीत ली। मुकर्ररा फासला 19 मिनट 56 सेकंड्स में तय किया। चैंपियनशिप लीडर फ्रांसिस्को छठे नंबर पर रहे। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बेशुमार जरूरी है, शिद्दत का लाए है दौर, बदले पुराने हर दौर, एक क्लिक पर दस्तयाब अब होंगी सारी मालूमात, इलाज मयसर सबको हो, तालीम पे भी पूरा हक हो, बिजली गैस और पानी से महरूम न कोई भी घर हो, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को अमल में लाना फौरी है। पाकिस्तान में पहली डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का इनेकाद हो रहा है। घर घर आने वाले नुमाइंदों से ताउन और दुरुस्त मालूमात की फराहमी यकीनी बनाएं, क्योंकि ये शुमार जरूरी है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत में शामिल जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होने वाले इजलास में कौमी असम्बली सेशन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दर्रा खुंजराब के दरमियान तिजारती और सफरी सहूलतें कल से दोबारा बहाल होंगी। राहदारी खोलने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दर्रा खुंजराब राहदारी दोबारा खुलने पर इजहार मुसरत करते हुए कहा है कि सीपैक की रफ्तार बढ़ाने की राह में हायल एक और रुकावट दूर हो गई है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। एक मुआहिदे के तहत चीन और पाकिस्तान दर्रा खुंजराब के जरिए 3 साल से बंद तजारती आमदोरफ्त सरगर्मियों का पीर से आगाज हो रहा है। मंसूबे के तहत पहले की तरह गिलगित बल्तिस्तान की वादी सुस्त के सरहदी मकाम से चीन के सेंक्यांग रीजन के लिए रोजाना बसें रवाना होंगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फ्रेमवर्क के तहत नवंबर 2016 से ये इंतजाम बहुत अच्छे अंदाज से जारी था। ताहम नवंबर 2019 में इस राहदारी और तजारती सफरी इंतजाम को बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दर्रा खुंजराब राहदारी दोबारा खुलने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा है, अजीम फौलादी भाई चीन के साथ तजारत की बहाली खुशाइंद है। दर्रा खुंजराब राहदारी खुलने से सीपैक की रफ्तार बढ़ाने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई है। उन्होंने कहा, 3 साल बाद दोनों ममालिक में तजारती राहदारी की बहाली बड़ी खुशी का लम्हा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक फॉरेन फंडेड शख्स ने सीपैक को मुतनाज़ा बनाने का जुर्म किया। उम्मीद है कि तजारती राहदारी खुलने से दोनों ममालिक की तजारत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 2018 में सीपैक जिस रफ्तार पर छोड़ कर गए थे, इसे 2 गुना से ज्यादा रफ्तार से बढ़ाना चाहता हूँ। खुशी है कि जो सफर नवंबर 2019 में रुका था वो 2023 में फिर से बहाल हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपैक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और चीन की अजीम क़यादत का खित्ते और अवाम के लिए खुशहाली और तरक्की का तोहफा है। वज़ीर आज़म ने तजारती और सफरी बहाली पर दोनों मुल्कों के हुक्काम और टीम मेंबर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उम्मीद है कि दोनों ममालिक में तजारती सरगर्मी में
हर रोज इजाफा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान तजारत और आमदोरफ्त बहाली पर चीन और पाकिस्तान की क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बंदिश के बाद अब 2023 में दर्रा खुंजराब राहदारी का दोबारा खुलना बड़ी खुशी की खबर है। उन्होंने कहा कि इससे आवाम की मुश्किलात को खत्म करने में मदद मिलेगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ सी पैक के मामार हैं। चीन की मदद से सी पैक के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का अजीम मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन PTI हुकूमत ने पाकिस्तान चीन तजारती सरगर्मियों और सी पैक की रफ्तार मुतासिर की। अगर मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर की रफ्तार से सी पैक पाक चीन तजारत जारी रहती तो आज अवाम बदहाल न होते। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। अफसोस है कि फॉरेन फंडेड एजेंट ने सी पैक और चीन के ताउन से पाकिस्तान में चलने वाले मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम हो गई है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलमी न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते शर्म आनी चाहिए। इमरान का शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। जज को गाली और धमकियां देने वाले बेशरम अदालती एहतराम का भाषण दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि डब्बा पीर, डब्बू, इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतज़िर हैं कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभालें। उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क का रंगबाज, मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। 2 मदारियों के साथ 3 डुगडुगियां हैं जो वो ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 4 साल अवाम का आटा, चीनी, रोटी लूटने वाले अब वज़ीर आज़म की मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़ा बना रहे हैं। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 4 साल पहले कीड़े वाली गंदम इमरान खान ने मंगवाई होगी। इतनी गलीज़ ज़हनियत है कि अवामी मंसूबों को भी अपनी घटिया सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम को मुफ्त आटा मिले, मुफ्त बिजली मिले, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मिले, इन्हें तकलीफ हो जाती है। अवाम का आटा, चीनी खा जाने वाले इमरान को गम खा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गरीबों को मुफ्त आटा क्यों दे रहा है। अब वज़ीर आज़म इमरान नहीं जो अवाम का आटा खा गया, रोटी खा गया, रोज़गार खा गया। उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म इमरान नहीं जो अवाम के पेट पे डाका डाले, उन्हें कारखाने से निकाल कर लंगर खाने पर बिठा दे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात अवाम की तरक्की, बेरोज़गारी और महंगाई कम करने का सोचते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने तरक्की के तमाम बंद मंसूबों को दोबारा शुरू किया। उनका कहना था कि सियासी यतीम अपनी तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद अवाम के मुफ्त आटे के पीछे पड़ गए हैं। मीडिया से दरख्वास्त है कि तहकीक के बगैर ऐसी गलीज़ ज़हनियत की झूठी और अवाम दुश्मन खबरें चलाने से गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंतखाबात न कराने से मुतालिक वज़ीर आज़म से मंसूब खबर झूठ करार देती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में बड़े इजलास की खबर मन घड़त है। मन घड़त, बेबुनियाद और शर अंगेज़ अफवाहों को खबर का नाम न दिया जाए। मीडिया से गुजारिश है कि इस मामले में वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ारत इत्तलात की जारी करदा खबर ही शाया और नशर करे। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने शेखुपुरा की तहसील शरखपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकने वाला इमरान खान सुन ले, अब बहुत देर हो गई है, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। उनका कहना था कि अभी तो कुछ हकायक बयान किए हैं जिससे इनकी चीखें निकल रही हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इंसाफ का हुसूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। इमरान खान ने मुल्क की राज़ों को अफशा किया है। ऐसा शख्स मुहिब्बे वतन और नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ये ज़रूर कोई हकायक बयान किए थे। इमरान खान कहता शीशे के घर में बैठ के तो पत्थर नहीं फेंकते, दूसरों की माँओं बेटियों पे रेड कराता है, उन पे केसेस बनाता है, मुकदमे बनाता है, जेलों में डालता रहा है, या जिस तरह की गाली गलौज करता है। जवाब आगे से अब आएगा, बहुत हो गई। अब इमरान खान जिस तरह की बदतमीज़ी करेगा उस तरह जवाब मिलेगा। लेकिन हमने बदतमीज़ी नहीं की, कुछ हकायक है, बदतमीज़ी तो अभी शुरू हुई नहीं। अभी तो मेरा हाल छोटी सी बात भी वो सीखवा हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि अपनी बेटी को कागजात में छुपाने और ना अपनाने की वजह से अब एक ही फर्द नाअहल होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को ना अपनाना इंसानियत की तौहीन है। मुल्क की तारीख में घड़ी चोर और फॉरेन एजेंट नाअहल होगा। तलाल चौधरी ने कहा कि पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी अब सिर्फ दहशतगर्द फॉरेन फंडेड जमात की होनी चाहिए।
फौरन एजेंट झूठा दहशतगर्द मुजरिम पार्टी के फैसले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अदालतों पर हमला करना और जजेस को धमकी देना किस आर्टिकल के नीचे आता है। नाज़रीन, खुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत लाहौर में मुफ्त आटे की मुनसिफाना तकसीम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर के तमाम ट्रकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। लाहौर शहर में मुफ्त आटे की तकसीम के लिए 40 ट्रकिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां पर सुबह 6 बजे से आटे की फरहमी का आगाज हो जाता है। अब तक सुबह पंजाब में 2,78,60,744 10 किलो आटे के थैले मुस्तहिक अफराद ने मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। आवाम का कहना है कि माह रमज़ान में हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फरहमी एक तारीखी इकदाम है। जो एजेड हैं, उम्र रसीद है, उनके लिए बहुत अच्छा, उनको लाइन में नहीं लगने दे रहे और उनको सीधा मतलब अंदर डील कर रहे हैं। अदब एहतराम के साथ बुजुर्गों और दूसरों औरतों को इन्हें एहतराम के साथ लेके जाते हैं। तो सही किया है गरीब आदमी के लिए, क्योंकि जिसकी आप फर्ज करें 500, 700, 800, 1000 दिहाड़ी है तो वो क्या करेगा। आसानी से आटा दस्तयाब है, गाड़ियाँ भरी हुई खड़ी हुई हैं, हर कोई आसानी से आटा लेकर अपने घर रवाना हो रहा है। हुकूमत पंजाब के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,04,77,000 जबकि नादरा में रजिस्टर्ड 20,18,942 मुस्तहिकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया गया है। आटे की तकसीम के दौरान शहरियों की कितारबंदी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और अमन अमान यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के 500 से ज़ायद अफसरान और एहलकार लाहौर शहर में कायम पॉइंट्स पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि आवाम की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क के साथ साथ मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। लाहौर शहर में मुफ्त आटे की फरहमी का सिलसिला जारी है और अब तक 72 लाख से ज़ायद आटे के थैले अवाम में तकसीम किए जा चुके हैं। मोहम्मद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रमज़ान पैकेज के तहत मुल्तान डिवीज़न में अब तक 36 लाख से ज़ायद आटे के मुफ्त थैले गरीब और नादार शहरियों में तकसीम किए गए हैं। मुफ्त आटा मराकज़ में बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए अलहदा काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्तान डिवीजन में आटे के 74 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर मुस्तहिक और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 663 काउंटर्स बनाकर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। मिसाली रिलीफ पैकेज के तहत 19 मार्च से अब तक 20 लाख से ज़ायद खानदान मुफ्त आटा पैकेज से मुस्तफीद हो चुके हैं, जबकि जिला मुल्तान में 8.5 लाख रजिस्टर्ड खानदानों को 26 लाख से ज़ायद मुफ्त आटे के थैलों की फराहमी का अमल जारी है। पूरी कैपेसिटी पे मिल्स ग्राइंड कर रही हैं वीट, तो 1-2 बजे तक हम लोगों का आटा यूजुअली जो ख़त्म भी हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे कम से कम 60 काउंटर्स हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले 30 की रिक्वायरमेंट थी, अब हमने उसको बढ़ा दिया है। मुफ्त आटा फराहमी के अमल को शहरियों ने मिसाली रमज़ान पैकेज करार दिया है। मैं सलाम करता हूँ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को, जिन्होंने बहुत तावन किया और इस हकदार थे हमें ये राशन मिला। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर ने अच्छा काम कर दिया, तो आटा तो मिल रहा है ना। दिहाड़ी लगती नहीं है, चलो आटा मुफ्त मिल रहा है, सहरी वगैरह इफ्तारी वगैरह में रोटी पक जाती है। शहरियों की सहूलत के लिए जिला मुल्तान में 34 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, जबकि हर पॉइंट पर काउंटर्स और अमले की तादाद दुगनी कर दी गई है। स्पेशल अफराद और बुजुर्गों के लिए अलहदा काउंटर्स बनाए गए हैं। इंतजामिया ने आम शहरियों से दरख्वास्त की है कि आटा तकसीम के वक्त वो तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि इस तारीखी पैकेज के समरात तमाम शहरियों तक पहुँच सकें। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। रमज़ान मुबारक में वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में सस्ते रमज़ान बाज़ारों का इनेकाद किया जा रहा है, जहां अर्ज़ां निरखों पर फल, सब्जियां और दूसरी अशिया दस्तयाब हैं। तफसील बता रहे हैं राहिल अंसार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में रमज़ान बाज़ारों के इनेकाद का मकसद आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना है। अरबों रुपए की सब्सिडी से जगह जगह लगाए गए सस्ते बाजार अशिया की कीमत और मेयार के लिहाज से अहमियत इख्तियार कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम एक एक स्टॉल को चेक करती है, सब्जी वगैरह फ्रूट जितने भी हैं इनकी क्वालिटी को भी चेक करते हैं और इनके रेट लिस्ट भी लगवाते हैं। सारा स्टाफ हमारा मुतहर्रक होता है। रमज़ान बाज़ार आए हैं, इसकी क्वालिटी जो है अच्छी है, बेहतर है। अर्ज़ां निरखों पर अशाए खुर्दोनोश की खरीदारी में मसरूफ अफराद जहाँ बाजार के इनेकाद पर खुश हैं, वहाँ कुछ लोग बाज़ जगहों पर सब्जियों और फलों की नाकस क्वालिटी से भी नाला नजर आए। क्वालिटी में जो ज़्यादा बेहतर हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बट ये है कि उस लिहाज से भी कीमतें ज़्यादा हैं। मजबूरी से लेना है, रमज़ान शरीफ है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, बस गुजारा है। इंतजामिया का कहना है कि बाजारों के समरात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए मॉनिटरिंग टीमें हमा वक्त काम कर रही हैं। चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को इंतहाई मौसर किया जाए ताकि इन बाजारों के क़याम का मकसद हासिल हो सके। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। अदम तवज्जो की वजह से ज़राअत का शोबा इस्तेदाद के मुताबिक तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से आर्मी चीफ से दरख्वास्त की गई है कि वो ज़राअत की बहाली के लिए किसान बिरादरी का साथ दें। तफसील समीउल्लाह से। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। काश्तकारी में तहकीक के फुकदान, जदीद टेक्नोलॉजी और बीजों का इस्तेमाल ना होने की वजह से दुनिया के मुकाबले में हमारी ज़रई पैदावार कम है। मुल्क का वसी तर रकबा अभी भी बंजर पड़ा हुआ है। 18 लाख बंजर एकड़ जमीन को ज़ेरे काश्त लाने से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ ज़रई शोबे के दरामदाद में कमी और इसकी बरामदाद में भी इजाफा किया जा सकता है। इसके साथ साथ मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 34 अरब डॉलर्स का इजाफा हो सकता है। चीन, कोरिया और कई दूसरे मुल्कों की फौज ने अपने मुल्क में बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाकर इन इलाकों का मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने किसानों की जानिब से आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि ज़राअत की बहाली के लिए किसान बिरादरी का साथ दें। पाकिस्तान में जब भी इमरजेंसी होती है तो हम पाक फौज को दावा देते हैं। जब सैलाब में हमारी माएँ बहनें सब तकलीफ में होते हैं तो उनको जाकर वो इमदाद पहुंचाते हैं। ज़लज़ले में वो आपका काम। आज ज़रई इमरजेंसी है, ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चाइना से हम ज्यादा तरक्की कर गए? कि अगर चाइना में पाक आर्मी, किसान और जवान मिलकर काम कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता? किसान इत्तेहाद का कहना है कि मुल्क के बाकी इदारे भी ज़रई पैदावार बढ़ाने और बंजर जमीन को ज़ेरे काश्त बनाने में अपना हिस्सा डालें। ये एक कौमी मसला है, इसके बगैर मईशत में बेहतरी मुश्किल है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान कराची पोर्ट से रवाना कर दिया गया है। इमदादी सामान में अशाई खुरनोश, कंबल और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। कराची से सैयद मोहम्मद जहांगीर अली की रिपोर्ट। इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सूबाई वजीर दाखिला मीर जिया लांगो ने कहा कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कराची से शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 10,000 अफराद के लिए खुराक समेत दीगर अशिया कराची पोर्ट से भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की मदद की थी और इसी जज्बे के तहत शाम के लोगों के लिए ये इमदाद रवाना की गई है। वज़ीर आला साहब ने तकरीबन 1 बिलियन के करीब जो है रकम रिलीज़ की थी कि हमारे शाम के भाइयों के लिए रमज़ान में आप लोग इनके लिए कोई पैकेज भेज दें। इमदादी सामान में राशन, अजनास, खाने पीने की अशिया, खैमे, बच्चों के लिए दूध, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। कौम के हर पीरो जवां का वतन के जानिसार शहदा को सलाम, जिन्होंने अपना सब कुछ वतन अजीज पर कुर्बान कर दिया। पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार करने वाले एजाज अहमद ने 6 सितंबर 2009 को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया। वो एक बहादुर और निडर सिपाही थे। शहीद के वालिदैन का कहना है कि बेटे की शहादत पर फख्र है। अगर और बेटे भी होते तो उन्हें भी वतन पर نو حالات نو خو موږ هلته نو خبر خو مرګوري راته خبره کوله چې کله دی ولګېدو نو موږ درته وویل چې ستا والد صاحب مور پسې خبر کوو چې هغه ستا سره راشي ملاقات وکړي وایي هغه ته خبر مه کوئ او که هغه خبر شو نو زما د وجې به هغه نور هم په تکلیف کې شي یا که زه جوړ شم نو زه به ورته خپله رنګ وکړم او که زه جوړ نه شم نو بس که شهید شم بیا ورته تاسو رنګ وکړئ. د خدای داسې پهلوان زوی راکړو چې زه د غمونو نه نیم خبر کړی. شکر دی د شهید مور یم اجازم قربان شو.
اور اب آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکے، کیونکہ یہ کشمیری عوام کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی سازش کر کے آگ سے کھیل رہا ہے۔ بھارت سے یک طرفہ اقدامات واپس لے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں سہولت فراہم کرے۔ مقبوضہ علاقے کی ہائی کورٹ نے 7 بے گناہ نوجوانوں کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کا لازم قرار دیتے ہوئے قابض بھارتی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ انتظامیہ حراست میں لیے گئے نوجوانوں کے خلاف کوئی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری صحافی فہد شاہ کے خلاف ایک فرضی مقدمے میں فرد جرم دائر کر دی ہے۔ ایس آئی اے نے اپنی جعلی فرد جرم میں دعویٰ کیا ہے کہ زیر حراست کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ نے بیرونی ممالک سے رقوم حاصل کی ہیں، تاہم صحافی کے وکیل نے الزامات کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور زعفرانی دہشت گردی کی پروردہ مودی سرکار نے گجرات قتل عام اور انسانیت کے مجرمان کو عدالت میں پیش کردہ شواہد کے باوجود رہا کر دیا ہے۔ حالیہ مذہبی دہشت گردی کے واقعات نے ایک بار پھر نام نہاد سیکولر اور بڑی جمہوریت کی دعوے دار ریاست کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ شاد۔ آر ایس ایس کے ہندوستان میں مسلمان ہونا جرم ٹھہرا۔ مسلمانوں کے خلاف قبیح جرائم میں ملوث ہندوؤں کو اعلیٰ اعزازات اور انعامات سے نوازنا بی جے پی کی گویا پالیسی بن چکی ہے۔ اب بھارتی عدالت نے 2002 میں گجرات فسادات میں مسلمانوں کے قتل عام اور اجتماعی زیادتی کے تمام 26 مجرمان کو شواہد کے باوجود رہا کر دیا ہے۔ یہ زعفرانی دہشت گرد 2002 میں مسلمانوں کو زندہ جلانے اور مسلمان خواتین کی اجتماعی عصمت دری کے مرتکب ہوئے تھے۔ بی بی سی نے اپنی دستاویزی فلم دی مودی کوسچن میں شواہد کے ساتھ نریندر مودی کو گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کا مجرم قرار دیا ہے۔ اس فلم کے منظر عام پر آنے کے بعد بوکھلائی فسطائی نظریات کی حامل مودی سرکار نے اس دستاویزی فلم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ہندو انتہا پسند جماعت شیو سینا بھی مودی کے گجرات قتل عام میں ملوث ہونے کا اعتراف کر چکی ہے۔ 2 دہائیوں بعد آج بھی بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کی اشتعال انگیزی جاری ہے۔ بہار، گجرات و دیگر ریاستوں میں انتہا پسندوں نے ایک بار پھر مساجد کی بے حرمتی کا نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ مسجدوں پر زعفرانی جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں اور مدارس کو نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے حکومتی سرپرستی میں جاری اس زعفرانی دہشت گردی کے نتیجے میں متعدد مسلمان زخمی ہوئے ہیں۔ حالات کی کشیدگی کے بعد متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہے اور کئی مقامات فوجی چھاونیاں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وفاقی وزیر مولانا عبدالواسع نے بنی گالہ اسلام آباد میں پاک پی ڈبلیو ڈی کی جانب سے تعمیر کردہ فٹ پاتھ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ منصوبہ پیدل چلنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ منصوبہ حادثات کو کم کرنے کی غرض سے شروع کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کے باوجود ہماری حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات افتخار علی نے کہا کہ منصوبے کی جلد تکمیل پر پی ڈبلیو ڈی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں ٹاور ٹائپ جدید ترین جیلوں کا ڈیزائن تیار کرنے اور قیدیوں کے لیے 10 جیلوں میں مزید ٹیوٹا کورسز کرانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے غیر ملکی قیدیوں کے لیے انٹرنیشنل کال کی سہولت کا طریقہ کار وضع کرنے اور دینی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ڈگری مکمل کرنے پر قیدیوں کی سزا میں 2 سے 3 ماہ کی تخفیف کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذہنی بیماری آٹزم کا دن منایا گیا۔ دن کی مناسبت سے وابڈا ہاؤس لاہور کو روشنیوں کی مدد سے نیلا کر دیا گیا۔ وابڈا کی جانب سے یہ اقدام آٹزم میں مبتلا افراد اور ان کے اہل خانہ سے یکجہتی کے اظہار کے لیے کیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ آٹزم ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچوں کی ذہنی نشوونما کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور یہ متاثرہ شخص کی زندگی کا عمر بھر پیچھا کرتی ہے۔ آٹزم میں مبتلا بچے خیالی دنیا میں رہتے ہیں، بول چال میں دقت محسوس کرتے ہیں اور اپنے خیالات کو بیان نہیں کر سکتے۔ ایسے افراد کو جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے اور دوسروں کے جذبات سمجھنے میں بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ These are not disabled children, they are differently abled children. So it is important کہ we work with the professionals, we work with the parents، ان کی ہم awareness create کریں اس کے لیے،
اور اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کریں کہ جی کیسے ہم ان بچوں کا جو صحیح پوٹینشیل ہے اس کو ہم ابھار سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں آٹزم کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر سطح تک اس سے متعلق درست معلومات اور شعور اجاگر کیا جائے۔ اس کے ہر منتھ میں ہر سٹیج پہ اس کے اپنے اپنے سمٹمز ہیں، جس میں سوشل کمیونیکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچہ اس طرح سے بات نہیں کرتا جس طرح سے باقی بچے کرتے ہیں۔ بروقت تشخیص، ماہر نفسیات اور والدین کی محبت متاثرہ بچے کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ آٹزم کا شکار بچوں کو خصوصی توجہ دے کر سماجی زندگی کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ آٹزم سے متاثرہ بچوں کے لیے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے اور ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی ذہنی بیماری آٹزم کے حوالے سے لاہور میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آٹزم کی روک تھام کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا کو آٹزم سے بچاؤ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ حکومت ضم شدہ اضلاع کے عوام کو تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ پشاور میں ضلع اور اقضائی کے نمائندہ جرگہ سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ضم اضلاع کے عوام کی مشکلات قبائلی رسم و رواج اور روایات کے مطابق حل کی جائیں گی۔ گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ آپریشن کے دوران تباہ شدہ گھروں کی تعمیر کے لیے فوری طور پر حکومت سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ تمام ضم اضلاع میں مسئلہ حل ہو سکے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید جہانگیر علی۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جہاں شہر قائد کی مختلف شاہراہوں پر افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہیں گورنر ہاؤس کراچی میں بھی خاص و عام کے لیے افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد، جامعات، دینی مدارس، سماجی اور عام شہری بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومت نے صرف دعوے کیے، ہم نے گورنر ہاؤس کو عام افراد کی زینت بنایا ہے۔ ایک میسج ہے ان صاحب حیثیت، صاحب اختیار، صاحب اقتدار اور صاحب ثروت لوگوں کے لیے کہ اگر گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے جا سکتے ہیں تو وہ بھی اپنے دلوں کے اور اپنے گھروں کے دروازے عوام کے لیے کھولیں۔ اور ایک جماعت جو پہلے 4.5 سال حکومت میں رہ چکی ہے، تحریک انصاف، جس کے سربراہ یہ کہتے تھے کہ عوام کے لیے ہم کھولیں گے یہ دروازے، وہ تو نہ کھول سکے۔ شہریوں کا کہنا تھا گورنر ہاؤس سندھ میں آ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ یونیورسٹی کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے پاکستان کو اور کراچی کو اسپیشلی۔ گورنر صاحب کی طرف سے افطاری کا جو ہوا اہتمام بہت ہی اچھا اور بہت ہی پرسکون ہے۔ یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی یہاں پہ بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ اسپیشل انویٹیشن گورنر سندھ نے جو دیا، یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ یہ گیٹ ٹوگیدر بھی ہے ڈفرینٹ کالج، اسکول، یونیورسٹیز کا، اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ عوام کا کہنا ہے کہ اہم عہدوں پر شخصیات اور عام آدمی کے درمیان فاصلے کم کر کے ہی ملک کو ترقی کی جانب گامزن کیا جا سکتا ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عقیدت، احترام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجی پاکستان ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن کامیابی سے جاری ہے، جسے ملک کے طول و عرض میں بے حد پذیرائی مل رہی ہے۔ تفصیل ہما صدف سے۔ 11ویں روزے کی رمضان پاکستان نشریات کا آغاز قاری ظفر علی سیالوی کی قرات اور احمد رضا قادری کے پیش کردہ قصیدہ بردہ شریف سے ہوا۔ عشرہ مغفرت کے آغاز میں افطار ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان معروف روحانی اسکالر سرفراز اے شاہ صاحب تھے۔ انہوں نے دعا کے آداب اور رب سے اپنائیت کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ ایک دکھی دل سے نکلنے والی پکار رب کے لیے وہ دعا ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اس مشکل سے گھبرا کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی از خود آ جاتی ہے، رقت از خود آ جاتی ہے۔ معروف خطاط واصل شاہد نے اپنے فن اور عقیدت کا اظہار اللہ کے نام لکھ کر کیا، جبکہ خوبصورت نعتوں سے نشریات روح پرور بنی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا صورت نو میں جانا کھا،
जाना खा के जान जहान खा। हादिया हाशमी ने नन्हे बच्चों को सबक आमोज कहानी सुनाई और शेफ अनम ने अफ्तार के पकवान सिखाए। माहिर ग़िज़ायत डॉक्टर अजमत मजीद ने लहसुन और अदरक के सही इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के तरीके बताए। क्विज़ सेगमेंट में साइंस कॉलेज वहदत रोड और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के तलबा ने शिरकत की। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी खुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में वाज़ेह कमी की गई है। तफसील जानेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत दालें 10 रुपये, चावल पर 10 रुपये, बेसन 50 रुपये और चाय 100 रुपये फ़ी किलो रियायत पर ख़रीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरी माहाना ख़रीदारी पर 3 किलो चीनी, 3 किलो घी और 20 किलो आटा ख़रीद सकते हैं। 91 रुपये किलो चीनी और 648 रुपये का 10 किलो आटे का थैला और इसके साथ 490 रुपये में उसे ये घी बग़ैर किसी वक्फे के मुसलसल चांद रात तक दस्तयाब होगा। ये है कि बाज़ार से थोड़ी सी मुनासिब रेट पे मिल रही हैं, इसीलिए तो आए। यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें हैं इनके कुछ बाहर की निस्बत सस्ती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटा 400 रुपये, घी 300 रुपये और चीनी 70 रुपये फ़ी किलो, जबकि दालें 10 रुपये, चावल पर 10 रुपये, बेसन 50 रुपये और चाय 100 रुपये फ़ी किलो रियायत पर ख़रीद रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कस्टमर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर माहाना ख़रीदारी पर 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 40 किलो आटा ख़रीद सकते हैं। बेनज़ीर इंटर का लो चीज़ां बहुत सस्तियां मिल रही हैं, असीं लैके जा रहे हैं, आटा भी लैके जा रहे हैं, बहुत सस्तियां चीज़ां मिलन दियां। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहत लोग आ रहे हैं ना, उन्होंने फायदा है कि उन्होंने जो आटा वो सस्ता मिल रहा है, 400 का 10 किलो मिल रहा है, तो बाकी चीज़ें उन्होंने रियायत मिल रही हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर 19 चीज़ें रियायत पर दे रहा है। इन चीज़ों में आटा, घी, चीनी, कुकिंग ऑयल, चाय, खजूर, बेसन, दालें, दूध, मशरूबात और मसाले शामिल हैं। यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए रमज़ानुल मुबारक में दी जाने वाली सब्सिडी हुकूमत का एक फलाही इक़दाम है, जिससे आवाम की मुश्किलात में कमी आई है। बलूचिस्तान में भी हुकूमती सब्सिडाइज्ड रेट पर आटा फराहम किया जा रहा है। सूबे भर में बचत बाज़ारों के साथ आर्जी पॉइंट्स पर आटा फराहमी जारी है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। कोयटा शहर में 1300 फेयर प्राइस शॉप्स पर 20 किलोग्राम आटे के 3200 बैग्स अब तक फराहम किए जा चुके हैं। शहर के 5 रमजान सहूलत बाजारों में भी रोजाना 800 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट ने भी शहर में 5 सेल पॉइंट्स बनाए हैं। महकमा खुराक के सेल पॉइंट्स पर 200 से 250 आटे के बैग्स यौमिया आवाम की सहूलत के लिए पहुँचाए जा रहे हैं। खुराक की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 600 बोरियाँ और 300 बोरियाँ जो है सुई में, 300 बोरियाँ डेरा बख्ती में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान में शुक्रिया अदा करना डिप्टी वज़ीर डेरा बख्ती है, इसे हमारा सस्ते आटा था। दारुल हुकूमत के अलावा सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी के रेशो के मुताबिक रियायती निर्खों पर आटा फराहमी जारी है। जिलाई लेवल पर आटा फराहमी मिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा खुराक सर अंजाम दे रहे हैं। रोजाना की डाइट में आटा बुनियादी जरूरत है। लोगों को हुकूमती सब्सिडाइज रेट्स 1550 रुपए में आटा फराहमी जारी रखने के लिए पंजाब को 50,000 गंदम की बोरियों की कीमत 1 अरब 50 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए हैं। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। माह रमज़ान में हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से अवाम को सस्ते दामों आटे की फराहमी जारी है। डेरा बुगटी में 20 किलो आटे का थैला अर्जा निर्खों पर दस्तयाब है। तफसील बता रहे हैं फाइक अली बुगटी। माह रमज़ान में बलूचिस्तान की हुकूमत ने डेरा बुगटी के अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे के सस्ते दामों में फराहम करने के लिए महकमा खुराक के सेल पॉइंटों के जरिए 20 किलो का आटे का थैला 1550 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट है बाज मेहरबानी है कि गरीबों वास्ता जो है सहूलतें खुद और कस्ते या आर्थ जो है कीमती अदा था गरीबों गुरबों मजदूर तो आर्थ की तमादी दुकान बाज मेहरबानी। जिला इंतजामिया डेरा बुगटी में सेल पॉइंटों के जरिए आटे की फरोख्त जारी रखी ताकि लोगों को मियारी और सस्ते आटा फराहम किया जा सके। आयकली बुगटी, PTV, डेरा बुगटी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। आवाम की सहूलत के लिए जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त आटे की फराहमी के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। तफसील शौकत अली से। मुल्क भर की तरह ज़िले स्वात में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर स्वात के मरकज़ी शहर मिंगोरा, सैयद शरीफ और तमाम नवाही इलाकों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, जिसकी तकसीम के लिए
मुख्तलिफ मकामात पर पॉइंट बनाए गए हैं और इलाके के अवाम यहाँ से बाइज्जत तौर पर मुफ्त आटा वसूल करके अपने अपने मकामात की तरफ वापस लौट जाते हैं। हुकूमत ने जो स्कीम किया हुआ है वो बिल्कुल ज़बरदस्त और ठीक काम चल रहा है। अभी ये आटा इन लोगों को फराहम हो जाए तो इससे इसकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। हुकूमत ने बनाया हुआ है ये अवाम के लिए, ये आटा और ये रिलीफ सिस्टम किया हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। शौकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बिंदोरा स्वाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर आटे की फराहमी जारी है। शाहकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं असद अली। रमज़ानुल मुबारक में गरीब तबके को महंगाई में रिलीफ देने के लिए शाहकोट में पंजाब हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटे की फराहमी का दूसरा मरहला जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम के अमल को मज़ीद आसान और बरक रफ्तार बनाने के लिए अब 2 आटे के थैले इकट्ठे दिए जा रहे हैं, जबकि तकसीम के औकात कार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। औरतों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है और बहुत आसानी से हमें आटा मिल गया है। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया, सानू बिल्कुल बहुत आसानी नाल आटा मिलिया। गवर्नमेंट जो आटा दे रही है वो बहुत अच्छा दे रही है, हम जैसी औरतों को कोई परेशानी नहीं आ रही, बहुत अच्छा इंतजाम है इनका। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है, अब जो के पहले प्रॉब्लम आ रही थी अब नहीं है। मुफ्त आटा स्कीम के तहत तहसील शाहकोट में अब तक तकरीबन 50,000 आटे के थैले दिए जा चुके हैं, जिनसे तकरीबन 25,000 अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। लेडीज के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, बड़े आराम से आटा मिल रहा है, कोई सानू परेशानी नहीं आई, बड़ी आसानी नाल सानू आटा मिला, बहुत बहुत मेहरबानी। तकसीम का ये अमल इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा, जिससे तकरीबन 50,000 से जायद घराने फायदा उठा सकेंगे। जबकि इंतजामिया की तरफ से शिकायत सेल भी कायम कर दिया गया है, जहां आने वालों के मसाइल को फौरी हल किया जाता है। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। और नाज़रीन, मारूफ लोक गुलकार शौकत अली को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। अपनी मौसीकी से मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले शौकत अली ने फोक गायकी के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो 3 मई 1944 को लाहौर में पैदा हुए। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ की बदौलत कई दहाइयों तक मौसीकी के उफ़क़ पर चमकते रहे। शौकत अली के गाए हुए पंजाबी लोकगीत, सूफियाना कलाम और मिली नगमे माजी की तरह आज भी मकबूल हैं। मुनफरिद अंदाज से फोक गायक को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दर्जनों एजाज़ात से नवाजा गया। PTV के मशहूर ड्रामा सीरियल कलियां के मारूफ अदाकार राशिद खान की बरसी के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसील जानेंगे राना इफ्तिखार अहमद से। उल्टा पाँव में चला के बाकी का भी खींच लूंगा। निकालो कोई आ तो नहीं रहा, मेरा ख्याल है इस तरफ से कोई नहीं आ रहा। बहाने से लगाओ। ये टैक्सी खाली है? बिल्कुल खाली है जनाब, खाली है। वैसे धक्का लगाना पड़ेगा टैक्सी को। धक्का लगाना पड़ेगा? ओ तुम ऐसा करो, तुम सब लोग धक्का लगाओ, मैं अभी आता हूँ। खुद टैक्सी में बैठो, हम लोग धक्का लगाएं। हम लगाएं। ओए बात सुनो, ओ चलो अपनी टैक्सी खुद लेके जा। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर ड्रामा सीरियल कलियां में हैगा का किरदार अदा करने वाले अदाकार राशिद खान 2 अप्रैल 1981 को अटक के मुकाम पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। राशिद खान की बरसी के मौके पर इस्लामाबाद में उनके घर ताज़ियती तकरीब हुई, जिसमें मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत और फातिहा खानी की गई। कलियां को जर्मनी इंटरनेशनल प्रोग्राम में अवार्ड से भी नवाजा गया था। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, कौन है जो स्ट्रॉबेरी को पसंद ना करता हो। ताहम रमज़ानुल मुबारक में तो ये छोटा सा फल अक्सर दस्तरखानों की जीनत भी बनता है। स्ट्रॉबेरी की अफादियत और ग़िज़ाइयत के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से वरदा सलीम। सुर्ख रंग के साथ सर पर पत्तों का ताज लिए दिल की शक्ल वाली स्ट्रॉबेरी का फल अहले ज़ौक़ के नज़दीक मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। ये छोटा सा फल जायके और अफादियत के लिहाज से किसी तरह से कम नहीं। यही वजह है कि हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ है। रमज़ान मुबारक के दौरान भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मामूल बनता जा रहा है। कोई इसे मशरूब के तौर पर इस्तेमाल करता है तो कोई बतौर फल इसकी लज्जत से मुस्तफीद होता है। स्ट्रॉबेरी एक बड़ा अच्छा फल है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, तो रमज़ान में बच्चे वगैरह भी ज़्यादा पसंद करते हैं। स्ट्रॉबेरी जो फल है ये रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये अच्छी चीज़ है, इसे लोग ज़्यादातर इफ्तारी में यूज़ करते हैं। स्ट्रॉबेरी बच्चों बड़ों सबकी पसंद है। इसे आइसक्रीम, मिल्क शेक, जेली, केक में भी इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि स्ट्रॉबेरी ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। स्ट्रॉबेरी जो है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल भी होती है,
जो कि हमारी बॉडी में बनने वाले जितने भी बीमारियों के अज्जा होते हैं उनसे हमें बचाती है, हमें कैंसर से बचाती है, हमारी स्किन को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की बढ़ती हुई मांग के बायस इसकी काश्त में भी इजाफा हुआ है और इब्तदाई तौर पर सवात, मरी और पहाड़ी इलाकों के बाद इसकी काश्त मुल्क के तूल व अर्ज में भी हो रही है। चंद बरसों से रावी किनारे लाहौर में स्ट्रॉबेरी की काश्त का सिलसिला शुरू किया गया जो इंतहाई कामयाब रहा। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये फल बच्चों बड़ों समेत हर किसी के दिल को लुभाता है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में जारी हालिया बारिशों से खित्ते पोठोहार में गंदम, मकई और दूसरी फसलों पर मुस्बत असरात पड़े हैं। ज़री माहिरीन के मुताबिक इन बारिशों से खित्ते पोठोहार में फसलों की पैदावार में इजाफा मुतवक्किल है। तफसील यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। खित्ता पटवार बारानी इलाका है, यही वजह है कि यहाँ फसलों का दारोमदार बारिशों पर होता है। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान मामूल से कम बारिशें होने की वजह से इस खित्ते में फसलों को शदीद खतरात लाहक थे। ताहम हालिया बारिशें इन फसलों के लिए रहमत का बाइस बनी हैं। ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, इनके असरात गंदम की फसल पे बहुत ही बेहतर साबित होंगे, क्योंकि इस वक्त गंदम की फसल बहुत ही अहम मरले में दाखिल हो चुकी है, उसमें दाना बन रहा है और बारिशों से इसके दाना जो है उसकी अच्छी नशोनुमा होगी और जिससे जो पैदावार है उसमें बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। बारानी इलाकों के काश्तकारों ने बारान रहमत पर सुख का सांस लेते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया है और तवक्को जाहिर की है कि रवां साल गंदम और दूसरी फसलों की पैदावार में नुमाया इजाफा होगा। इन बारिशों से मौसम खुशगवार होने के साथ साथ जेर जमीन पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्क के बालाई इलाकों में कल और मंगल को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को है। रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। उधर पेशावर, चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, मर्दान, बाजोड़, कुरम, वज़ीरिस्तान, कोहाट, करक, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, कोयटा, योब और बारखान में भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के साथ शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद में भी 38, मुल्तान 30, सरगोदा 27 और फैसलाबाद में भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में बात करेंगे चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 26, कराची 31, पेशावर 24 और कोयटा में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।